Hey guys, welcome to our podcast, What Millennials Think. And on this show, we will be talking about topics which are not necessarily discussed on public platforms. We, as 18-year-old students, millennials, teenagers, and young adults, will be giving our say on topics in an extreme attempt to receive public validation. We will be calling in sarcastically intelligent guests occasionally on this show to talk about topics which are fairly out of our league. So sit tight and enjoy the show. Welcome to the show, Shubhamoy. Yep. So me and Shubhamoy will be hosting this show every week. What's up, Shubhamoy? What's up? What's going on in your life, man? Lockdown sucks. There is no such exciting stuff happening. Yeah. And this But podcast right now that we're doing, it's actually a good way of expressing our thoughts to people out there listening to us. So yeah, this quite gonna true. be exciting. Yeah. Baby, let me see it. I just want to eat it. So let's talk about the new education policy that's been administered. What's your say on that? I'll take myself as an example first. Right now, I'm 18 years old, and I love coding. Okay, Yep. I love making new programs. I love to code, but my parents just restricts me on everything I do. Like according to them, I need to get a college first, and I need to pursue education step by step. Even if I have a potential right now, I can't pursue it on my own. It's according to them. And right now, I don't even earn money. So it's a bit tough to go against them right now. So what this education system brings is from class 6 onwards, students gonna get the subjects they always wanted. Class 6 is still small, no doubt about that. But still, as a student, when someone starts getting the subjects they want, they automatically grow interest in that, which in our time we didn't get that. We have to learn physics, chemistry, maths, social studies. We learned such stuffs that didn't even require in our life. Okay, so I think that the thing that happened is, I don't know if it's going to work out or not, but it's not even yet applied due to this lockdown and pandemic and all. But I Yeah. don't know, like Just- changing the structure was really needed, and that happened. Yeah, Now we need to see how students adapt. Yeah. One thing I really like about this system is that our generation of kids was very marks oriented. Students of every class were judged according to their grades. Now this is not going to happen. I think this is something that's really good in Exactly. See, now the thing is that India is such a country where anything, quite literally anything you do will be taken in a bad thing. If you want to become an engineer or a doctor, you still need to put the same amount of effort as we were putting, like in our time, because like our time has ended now. We are going to join college next year. Yeah, and one thing that's really necessary to happen in India is that parents should be more aware of the fact that their child can do more if they follow their own dreams, if they follow their own talents. But most of the parents in India push their child towards this doctor and engineer culture. You can't deny this fact. No, exactly. They are going to go nowhere. In the end, they are going to go to the thing that they like and pursue that only. Now won't even matter after 10. People will be on their own feet. They will be doing what they like. See, the moment you start making money, family equation of you not being able to do anything gets out, right? क्योंकि एक बार तू पैसा कमाना चालू करेगा, उसके बाद तेरा पापा मम्मी तेरे को नहीं बोलेगा कि मत कर. उन लोगों को हो गया कि चलो now he is financially independent, अब तो कुछ भी कर, हमको क्या है. Exactly. But getting to this phase is difficult. Like when we say the word millennials, the age we are passing through right now, it's a really difficult time, because this is the time when you get judged everywhere you go. Your parents will judge you for not studying. Your family will judge you of how many marks you got. You lose friends. Means it's bro, that's the thing. So we have been trained in this way ना. We are from nursery से यही चल रहा है. हम लोग marks कम लाते हैं तो खराब student, marks अच्छा लाता है तो good student. That's like हम लोगों को सही है. अभी बाकी generation का होगा अच्छा. हम लोगों को क्या है? हम लोग तो वैसे भी देखो. Even if I do engineering, I'm not gonna pursue any job career. Exactly. Do what I like. Yeah, like I love content creation.
I love management and everything. So I'm going to slowly go to that way. But India has made it such a thing that, you see, I'm giving a perspective, right? Yeah. In India, even if you want to pursue something such as creative arts or visual arts, or let's say I just want to study the show business, it's looked down so much. It's looked down so much. You cannot just do that. See, my family has looked up on me like, ये बच्चा अच्छा है पढ़ाई में तो ये science लेगा. Now, because I've been getting good marks. Okay, just because I've been getting good marks, I've been judged that okay, ये अब science लेगा, and I took science. Okay. Now, if I say to them that I want to study the show business, or I want to study management, like, they will be taken aback to some point. Bro, they will just judge you simply. They won't see what you want. They will just want you to do what they want. This Exactly. is the real problem. Even now, people will have to prepare for JEE. People will have to prepare for NEET, or even like other exams such as CLAT and everything. But thoda easy hoga. Matlab, but you know, until now, it was taken as a rat race. Like, everyone is going into this field, and I think this new education policy will change this at least. Like, it's not going to be a rat race anymore. People even before class 12, even before passing class 12, the students, the child will know what they actually want, because a student is most of the students are totally unsure about their career. They just don't know what they want. And they start putting blame on their parents, on them. Yes, parents are obviously there to be blamed, because for some time they have pushed their child to that position, but the child itself is unsure that what they actually need, what they actually want. But then again, we cannot blame the parents, because I think, you know, where this idea has originated from. Some of the people, let's just take some of the people, for example, might not have been doing comparably good with accordance to other people that they see. Okay, I'm not talking about our parents, or not talking about some people we know. I'm just talking in a general aspect. Yes. Okay, now they see that, okay, this doctor is doing very well, there is no financial problem. This engineer was doing very well, there's no financial problem. Now, someone who is comparably maybe earning less thinks that his son or daughter, if they take that career option, might be more happier in life. And so that is pushed down upon that. There's like nothing to blame them, because they just, at the end of the day, want that there to be enough money for them to grow. Their son or daughter, they just want their son and daughter to live a happy life, you know. Yeah, exactly. And that, like, I'm coming to this point. They connect happiness, success, and money to the point where they're studying from, which is so untrue. They take everything from education. They just connect everything with education. What we learn in school, what grades we get. This is what I don't like about it. Yeah, exactly, bro. That is it. So I might be getting happy from the roles I'm doing in a play. Okay. Yes. But the parents will not simply understand that, because if you see most people that did play, they are mainly unsuccessful people. I'm not saying in that they in their own self might be happy and, you know, fulfilled with life, but according to my parents' aspect, they are not doing so well. Let's just face the fact. Most of them are not doing well. They're earning minimum wage. Okay. And first of all, so this whole value of society, man, government job, तुम अगर government job पे तुम अगर 12,000 कमा रहे हो, so that's good. But तुम Uber चला के महीने में 40-50 हजार कमा रहे हो, that's bad. तो वो नहीं कर सकते. ये क्या है? Exactly, bro. और अभी तो मतलब इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को भी वैसे नहीं देखा जाता है. एक एवरेज आदमी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, वो 40 years अपने जॉब में लगा सकता है, ठीक है. He won't grow rich. He will just have an average earning. But वो 40 years के अंदर वो 2 साल कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके माइंडसेट में ये है कि बिजनेस में इन्वेस्ट करना या कोई बिजनेस करना मतलब ये बड़ा लोग का काम है. He is ready to put his for 40 years for his entire life. Yes, exactly. But he won't take 2 years out of it, and he won't give what he needs. तो लोग निकलते हैं. I've seen like most people that come out of, see, मैं एक बात बोल रहा हूँ. Most people that don't come out of this rat race live in a
own dream that okay, this is good, tu kya janta hai, what will happen, this is only good. So I don't understand this. Most of the people that come out of this rat race and actually try something new they get so much like success in life. Even if देख, मैं अगर 2 साल निकालता हूँ, ठीक है, मैं अगर 2 साल निकाल के एक नया बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ या कुछ स्टार्टअप या कुछ भी करता हूँ, तो that what's the worst that can happen? That 2 years I'll be unemployed, that 2 years I won't get any funding or I won't make any money, और मैं 2 साल बाद उसी पोजीशन में जाके ज्वाइन करूंगा एक कंपनी जिसमें मैं छोड़ा था. That's the worst that can happen. Now what's the worst that can happen if I don't take that job? Bro, मैं पूरा अपना जिंदगी उसी में फंसा रहेगा. अरे एग्जैक्टली ब्रो, मैं पूरा अपना जिंदगी 40-50 हजार में रहेगा, लेकिन मैं 2 साल के लिए बाहर निकल के अपना खुद का नहीं कर सकता. What all theory is this? People have potential to earn in lakhs per month, but they are not ready to push themselves. India wants mediocrity. This is a fact. Yes. India wants mediocrity. Why? Just because उनके पापा लोग और उनसे भी जो पापा लोग हैं, they are just happy with whatever they have, and that's like okay. You are happy, that's okay. But why? If I have the capability to do more, up they look down on you. But the teenage culture in India is like it's really so toxic. bad. It's so toxic. Let's talk about girls for some time. I have seen girls in social media so obsessed with the thing called love that they forgot their own existence. Exactly, dude. Not only girls. This is not only girls, bro. This is boys too. Yes. Bro, this is everyone, to be really honest, except a few people. Yes, exactly. Bro, as a human being, the goal is to become asset from liability. But this thing just makes people like they are already liabilities, and this is not going to make them an asset. They are just going on and going on and going on, and यही तो प्रॉब्लम है ना. यही तो प्रॉब्लम है. कबीर सिंह देख के बाल बड़ा कर लिया, सनग्लास खरीद लिया बस, और वो जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया, वो जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके इतना अच्छा डॉक्टर बना, लाइफ की फाड़ दी है उसने, उसके बाद ये सब कर रहा है. तू पहले वो तो करता. तू पहले ही जाके प्रीति किसने उसको टच किया. Bro, I have a feeling we are going to hurt sentiments of a lot of people after this podcast. Yeah, exactly. Because what we are talking now, people just do this. Bro, they will not, first of all, not accept the things we are saying. They hate what we are saying. This is another problem in India. People won't accept. People never accept what they do. They love to live in a world that they create in their mind, which is non-existent in real world. Basically. Exactly. क्या चल रहा है यार? कुछ भी चल रहा है. You just tell me one thing. Like teenage में ना ये बहुत चर्चा होता है कि everyone leaves me. मैं बहुत अकेला हूँ. भाई तुम्हारा एज तुझ में है क्या तुझके साथ रहने के लिए? That's the thing. If you don't have any financial value, if you don't have any emotional value, if you don't have any like mental value, like तुझ में तू खुद साला तेरा कुछ सेटल नहीं है जिंदगी में, तो मैं क्यों रहेगा तेरे साथ? बेसिक थिंग है ना. देख, एक तो इमोशनली ब्रोकन हर कोई रहता है, क्योंकि सोसाइटी इंडिया में we are not in relationship, we don't do that now, but still we are somewhat broken, not because of like any girl or any boy, but like just emotionally broken. Society, everything happening around us, just because of that. मैच हुआ, कुछ और सोचा था बड़ा होकर करूंगा, कुछ और करना पड़ रहा है. Yes, exactly. I mean, the way we do things, we may not be happy with that. But हमें ये पता है कि मतलब ठीक है. Yes. और इसीलिए सबको इमोशनली अनसेटल्ड है. हम लोग जिनको जानते हैं, इंक्लूडिंग अस, वी आर इमोशनली अनसेटल्ड राइट नाउ. तो मैं क्यों जाऊंगा यार रिलेशनशिप में? मैं खुद ब्रोकन हूँ, वो भी ब्रोकन है, सब कोई ब्रोकन है. क्यों किसी को जाना है यार? क्या है यार? I'm just talking about me and you. We know what we want to do, and we also know what we don't want to do. Yes, that's off. This is really important in life. That Because most people feel. People tend to do a lot of things that they, first of all, see, I am going to say a very rigorous statement. Okay.
because we have, we having less resources compared to someone who is a millionaire is actually a blessing in disguise. Yes, obviously, man. That Because millionaire was going, also in 10 broke. see, we will go in 10 ways, we will fail 9 times, but we'll learn all those ways and avoid it later on. Just saying. Yes, we just need to learn from what we are doing, and it doesn't matter what we are today. It matters when the way we push ourselves. It matters the most, the effort. Yeah, exactly. Like, yes, making decisions matters a lot. तेरे को सामने Yes, से आके कोई लड़की प्रपोज करेगी, तू एक्सेप्ट करेगा या डिनाई करेगा, वो इट्स अ लॉट. exactly. Most people believe in love at first sight, and I think this is the most disgusting thing ever. Bro, let's not even talk about love on this podcast. It's a bullshit theory. Okay. Lol. Yeah, Yes. we will just not talk about it because it's a long topic. We'll talk about it when we are in college. Because Yes, yes, guys, to our listeners, this podcast will go on forever and ever until we are alive. yes. Yes. So for People will fight. the people who don't know, I used to live in Nigeria with my father because he was posted there. Shubhamay was in Kolkata, and then I came to Kolkata and joined Shubhamay school and class, and then we became best friends from class 6, and even till now we are best friends and looking forward to the rest of our lives, right? Yes. Yes. And we are doing quite good. Yeah, We are on our own. we are doing decent. We are following our dreams. Everything is good, at least for now. Yes, और exactly. जो Yes, होगा we देख still have लेंगे. resistance. See, I have resistance from my parents. Okay, like they want my happiness, want me to get a good college, and But then पढ़ाई कर लेंगे. yes, वो तो सबका है ब्रो, वो तो मेरा भी है. they want to study, and you know I don't like to study. This is a fact. I mean, I will study what I like. I can't Bro, just go on studying the ब्रो whole day. तूने 4 लाख ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है फिटजी में, तू तो मत ही बोल. तू तो ऐसा ब्रो इट्स सच. वो एक मीम चल रहा है, देखा वो वाला, लॉल नूब, उसने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लिया था, कोडिंग सीखेगा, हम तो क्लास 6 से सीख रहे हैं. Yes, exactly, bro. Yeah, this is an aspect, dude. Coding jobs are going to vanish in a few years Yes, yes, because yes, everybody yes. will know coding. Yes, exactly. The more people get experience, the lesser the job will be. Yeah, like more supply is less demand, right? Yes. And potentially all kids will know how to code from now. But then again, Indians ये बहुत टाइम लगेगा यार इसको करने में. हम लोगों को बेसिक सिखाया था, मतलब है बेसिक बहुत छोटे में, MS बेसिक, MQL, ये सब. We didn't even take it seriously, dude. ब्रो क्या करेंगे, तो ट्रायंगल बनाते थे और ये सब करते थे उसमें. हाँ. बट यू नो अभी ये जो एजुकेशन सिस्टम आया है, इसमें बच्चे के ऊपर से प्रेशर तो बहुत ही कम जाएगा. मतलब हमारे ऊपर जैसा प्रेशर रहता था ना, पढ़ना पड़ेगा एग्जाम. अरे प्रेशर तू लेता था यार, मैं तो नहीं लेता था. मैं तो 9 में छोड़ दिया, 10th में छोड़ दिया मैं. अभी जो होना है होने दो, अभी मैं नहीं हूँ इसमें. एटमॉस्फेयर क्रिएट होके रहता था कि मतलब पढ़ना है ऐसा. हाँ. अभी बच्चे के ऊपर रहेगा. ये एक तरफ से अच्छा है, मतलब जो अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करेगा वो इस एजुकेशन सिस्टम में वो फायदेमंद होगा. एक तो भाई बहुत अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल विल बी अनसक्सेसफुल एज वेल. क्योंकि देख हम लोग जैसे भाई एक वे में ड्रिवन है ना, मतलब कुछ ऐसी चाहत है कि मतलब कुछ ना कुछ करेंगे अच्छा, ऐसा है ना हम लोगों में. बहुत लोग ऐसे हैं कि रूटीन के चाप में आके कर लेते हैं, सक्सेसफुल हो जाते थे अभी तक. बहुत लोग हैं, ज्यादातर लोग हैं यार. मम्मी बोलती थी ये अब कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, फिर नौकरी ला ले, हो जाता था. बहुत लोग यार. अभी वो नहीं होगा. अभी तुम्हें खुद चूज करना है, करो अब चूज लो. तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होगा यार, स्पेशली इंडियन, स्पेशली बंगालीज ब्रो. हम एक तो ये मानते हैं बंगाली कल्चर में भाई पेरेंट्स लोग का बहुत है, बहुत ज्यादा भाई डिसीजंस लेते हैं मम्मी लोग हम लोगों के लिए, which is good, but then again like you know बोलो it goes on for a long time.
it continues even for a 21, 22, 23 years old man. 21, 22, 30 तक आई नो पर्सनली पीपल दैट अभी तक कंट्रोल हो रहा है वो लोग. इट्स अबाउट योर सेल्फ. एक एज के बाद तुम अगर घर के बाहर जाके रहोगे हॉस्टल वगैरह में तो सही हो जाता है फिर तो. Yes, exactly. And that's needed, you know. Yeah. Every time you can't just work from. सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट करने के लिए लगता है यार. Yes, exactly. कॉलेज में भी तो बहुत ज्यादा फायदा होगा ना स्टूडेंट्स का. हाँ वो तो होगा भाई सबॉटिकल कॉलेज लेके. का भी इतना वैरायटी है ना. हाँ भाई मतलब कॉलेज को स्टूडेंट्स को भी तो स्टूडेंट्स को कॉलेज देखकर भी जज किया जाता है. ब्रो ये तो तू सबसे ज्यादा IIT है. तू आईआईटी से है, तू अच्छा है, तू इस कॉलेज से है, तू बुरा है. मतलब स्ट्रेट सिंपल ऐसा जज करता है वो लोग. अरे हम भी तो करते हैं यार. ऐसा मत बोल कि वो लोग करते हैं. हम लोगों को अगर कोई ट्यूशन पढ़ाएगा तो हम चाहेंगे ना आईआईटी का आदमी पर. ये भी तो बात है. वो तो सही है मतलब, पर ये भी सच है कि मतलब वो आईआईटीज एंड ऑल वो एक पॉइंट तक वो ठीक है. मतलब आफ्टर दैट पॉइंट यू नीड टू सर्वाइव ऑन योर ओन फीट. एग्जैक्टली. डू यू नो दिस गाय कॉल्ड सचिन राणा? वो अभी केमिस्ट्री पढ़ाता है. Yes, I know. अरे उस बंदे को देख के यार सच्ची भाई सच्ची बहुत अच्छा लगता है. फाइंड इज जो लोग आईआईटी पास आउट होता है वो खुद का एकेडमी खोल लेता है आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ाने के लिए. नहीं यही तो ये चीज मुझे अच्छा लगता है भाई. मतलब ठीक है, मतलब तुम आईआईटी से निकले हो, कुछ करो. मतलब अरे नहीं उनका क्लेम भी तो तगड़ा होता है ना. देख वो क्या हुआ है. अब वो नहीं सीखा. देख यू विल ऑब्वियसली प्रेफर समवन हु हैज गॉन थ्रू द प्रोसेस एंड यू नो क्रैक्ड इट than someone who has not. Like, no, this is a kind of cycle. It's like you study, you go to IIT and you make other study. मगर पढ़ना ब्रो हम जितना करे जितना बोले भाई पढ़ना तो है. एक लेवल तक भाई सबको पढ़ना चाहिए. क्लास 12 ग्रेजुएशन तक ब्रो कुछ भी बोलना चाहिए. बेसिक तुझे अभी पता नहीं चलेगा 10 साल बाद कहीं ना कहीं कुछ तो लगेगा उसको. हाँ एग्जैक्टली. अब इंडिया में इसको इतना फैंटेसाइज करके रखे हुए हैं कि मतलब अरे कॉलेज से पढ़ा है, इंजीनियर है. बोर्ड्स देखना. किसका बोर्ड्स क्लास 10 और क्लास 12 का बोर्ड्स. अच्छा हाँ. इट्स अ हाइप ऑफ नेक्स्ट लेवल. ब्रो मेरा भाई छोड़. लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. नाइटमेयर है. मुझे मेरे पीछे वाला ब्रो तुझे पता है ना मेरा हिंदी एग्जाम वाला स्टोरी. भाई मेरा के हाथ में आ गया यार. क्या बोर्ड्स के टाइम पे इतना हाइप होके रखा था ना. हाँ तेरा तो मार्क्स था. तेरा तो बोर्ड्स मार्क्स था उस टाइम पे. तेरा तो एकदम लेट्स नॉट. मगर तेरा अलग लेवल का चल रहा था उस टाइम पे. मजा है ना. मुझे तो पता ही है. लेट्स नॉट टॉक अबाउट. हाँ ठीक है बाद में बताएंगे जब टाइम आएगा. जब एक्चुअली कुछ बनेंगे उसके बाद ये सब स्टोरीज बताएंगे बिहाइंड द सीन्स वाला. अरे बाप रे मैं सोच. लेट्स चेंज द टॉपिक. तू रोमन साइनी को पहचानता है? नहीं ब्रो. रोमन साइनी अनअकैडमी का सीईओ जो बना. उस बंदे का जो आइडियोलॉजी है मुझे मस्त लगता है यार. उसने क्या खड़ा कर दिया यार. एम्पायर खड़ा कर दिया पूरा. अनअकैडमी जो भी बोल तो अभी एक भाई जेईई लेवल का क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है. एक सर्च उतना तो नहीं था. उसके पहले भी एक था topper.com. अभी भी है मगर अभी भी है. हाँ बायजूस फालतू है यार. पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. देखा वो एक बच्चा बोल रहा है. मैं एक बच्चा बोल रहा है मैं पहले पढ़ाई में बहुत वीक था, मैं बहुत डिप्रेस रहता था, मेरा कॉन्फिडेंस लो रहता था. फिर मैं बायजूस का टैब खरीदा और अब तो अभी हूँ. सच्ची हमारे क्लास में ही तो है ना एक बंदा बायजू का. मगर अनअकैडमी का बहुत बड़ा रिस्पेक्ट. अरे यार पहले ऑनलाइन में आईएएस पढ़ा रहे हैं. क्या बात है. यूपीएससी. हाँ भाई
बंदों का सालों साल बैठ के नहीं होता, वो ऑनलाइन में पढ़ाएगा। में पढ़ा रहा है। हाँ। हाँ, 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 हाँ। अभी अभी देख, अभी क्या है ना, छोड़ ये बोर्ड्स के बाद ये वाली सब बातें करेंगे। अभी अभी इसको छोड़ते हैं क्योंकि ये हमारे स्कूल का कोई टीचर अभी भी सुनेगा अभी तो भी अब नहीं, अभी भी चांस है, अभी नहीं बाद में। और बता, क्या मूवीज देखा? अम्ब्रेला एकेडमी देखा तूने? और चालू किया भाई, वो तो मतलब मुझे डार्क के पहले देखना चाहिए था। तूने डार्क पूरा खत्म कर दिया ना? हाँ हाँ। तो तेरी मौसी किधर है? भाई दिमाग घुमाने वाला चीज है पूरा। भाई मैं तो कॉपी किताब लेके बैठा था कि कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। अच्छा, तो ये गजब जो, है भाई, और मतलब सुन, ये जो एनईपी है अभी, इसमें कॉलेज में तो फर्स्ट ईयर में भी छोड़ सकता है, सेकंड ईयर में भी छोड़ सकता है, थर्ड ईयर में भी छोड़ सकता है, फोर्थ ईयर में तो हाँ छोड़ेगा ही। ये अच्छा है, मतलब तुझे अगर बाद में ज्वाइन करेगा तो तो ये उधर से पहले से कंटिन्यू। नहीं करना। हाँ, हाँ ये बाहर भी था यार। ये ना, एक यूट्यूबर है, कुछ नाम मैं उसका भूल गया हूँ, ठीक है। उसने बोला था कि मतलब उसको कुछ तो जॉब मिला था या कुछ, मतलब उसका एंटरप्रेन्योरल कुछ था, और वो हार्वर्ड में स्टूडेंट था, ठीक है। हाँ। हाँ, और उसने छोड़ दिया था, तो मेरा माथा घूम गया देख के कि ये कैसे छोड़ दिया यार, हार्वर्ड कौन छोड़ता है? फिर उसने बोला मतलब आई कैन गो बैक एट एनी टाइम आई वांट, और मेरा माथा फट गया उसको सुन के ये कि दिस एजुकेशन सिस्टम कॉन्सिस्ट लॉट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। यार कैसा कर सकता है यार वो, मतलब तू ओढ़ मतलब के फिर वो वापस फ्रीडम आ रहा है बंदी है ब्रो, ब्रो, मतलब क्या मतलब? जॉन फिश तू नाम देख का ना यूट्यूबर है। देख ना हमारे स्टूडेंट लाइफ पे हमारा कोई फ्रीडम नहीं है, मतलब स्कूल जो बोलेगा वही होगा, हमको नहीं है जो ब्रो, नहीं है, असाइनमेंट वही नहीं करना है। पड़ेगा, मतलब स्टूडेंट्स का कोई मतलब कैसा स्टूडेंट्स को लग रहा है, वो क्या चाहता है, कोई कोई नहीं देखता वो, मतलब इसमें ये वाला नया पॉलिसी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ गया है इसमें। वो तो है, वो तो है। ये मतलब अभी मतलब जितना अभी अप्लाई तो नहीं हुआ है ना ये वाला, नहीं शुरू नहीं, होने हम दो सब। हम लोगों के बाद वाला बैच से होगा शायद। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तब दिखाई देगा हाँ, तब मतलब दिखाई कौन देगा। अभी अभी टाइम लगेगा यार, अभी टाइम लगेगा। 10 साल से बोल रहा है सीबीएसई आईएससी मर्ज होगा, वही नहीं कर पाए ये लोग। अबे गवर्नमेंट प्रोसेस में डाल गया, यही बहुत बड़ी बात है, अभी होने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। सीबीएसई और आईसीएसई। हाँ, कब? बचपन से यार, मैं जब एडमिशन लिया हमारे स्कूल में, तब से सुन रहा हूँ मैं। सीबीएसई अच्छा है, मतलब पीपल इवन फाइट अबाउट इट ब्रो। अरे पीपल ब्रो, से इन सीबीएसई जो लोग इस पे समवन से फाइट करते हैं यार, उनसे मैं बात नहीं करता, टू बी रियली ऑनेस्ट, कि तू कर क्या रहा है, तू क्या प्रूफ कर लेगा यार? हाँ, तेरा अच्छा है, बोल अब क्या? The moment you agree with them, their whole thing is gone, their whole यस point is gone. मैं ये करता हूँ यार, दिस इज अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। तुम द मोमेंट यू एग्री विद देयर पॉइंट, उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं बचा, तूने तो एग्री कर दिया ना। अब तो वो गया। ये बहुत जगह पे मैंने ट्राई किया है। वो जब 11th के पहले में बहुत सारे स्टूडेंट्स आए ना एक स्कूल से, आईसीएससी वाले, हाँ तो वो बोल रहे थे कि सीबीएसई है, सीबीएसई वो, तो मैंने बोला हाँ सीबीएसई अच्छा है, आईसीएसई अच्छा है, बस खत्म। बोलने का कुछ है ही नहीं उसमें। ये मैं और एक जगह ट्राई करता हूँ, ये जो रिक्शा वाले होते हैं उसको। लॉल। मेरे घर से डायमंड प्लाजा का एक दिन बोला कि 200 रुपये लेना, मतलब 200 रुपये लेगा। मैं बोला चल, बैठता हूँ, चल। और वो ही मेरे तरह देख रहा है, क्या सर? 200 रुपये है आपके पास? अरे नहीं, पुलिस स्टेशन चल। गलत बोल रहा है। तो और बोल, क्या बुक्स पढ़ा इस साल? क्या बुक्स पढ़ा तू? इस साल में बहुत इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बुक्स पढ़ा। रीच एंड पुअर डैड वाला पढ़ा। रिच उसके डैड पुअर बाद डैड, वो वाला मैंने भी पढ़ा है इस हाँ साल। थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ा। थिंक एंड ग्रो रिच फिर पढ़ी मैंने, श्वेताब गंगवार का वो वाला बुक पढ़ा, द बेस्ट बुक एवर, या ऐसा कुछ नाम है ना उसका। अच्छा मैं देन हाँ बोल। वो बफेट पे भी पढ़ा, वो वॉरेन बफेट का एक जो बुक आता है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाउ हाँ टू मैंने इन्वेस्ट। वो वाला मूवी देखा, द फेसबुक।
वॉरेन बफेट भाई मस्त आदमी है एकदम। भाई वॉरेन बफेट क्या यार, वो मस्त है यार। मुझे मुझे मिलेनियल में से किसको अच्छा लग रहा है बोल तो, इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स में बोल से बोल गैरी वी मस्त आदमी है यार। भाई गैरी वी एकदम। मस्त आदमी है ब्रो। वो उसके जैसा, उसने तो जेक पॉल के वो टीम 10 है ना, उसका भी तो प्राइम इन्वेस्टर था वो। हाँ भाई, तू सबसे 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 सैवेज इंसान कौन है पता है? वो जो कौन कौन? वो ओयो रूम्स का जो सीईओ है, जो क्रिएटर ओ है, वो लड़का यंगेस्ट बिलियनियर इंडियन वाला। हाँ भाई हाँ। मतलब सैवेज एकदम। क्यों क्यों बोल, कोई इंस्टेंस बोल। नहीं मतलब वो भी मेरे जैसा ही, मतलब जेई के लिए वो प्रिपेयर करने के लिए जेई का कोटा में था। अच्छा वो कोटा कोटा में में वो, हाँ था? वो अच्छा। कोटा मतलब वो तो कॉलेज भी नहीं कंप्लीट किया पता है। हाँ उसको हाँ तो उसको क्या आईआईटी मिला था? आईआईटी नहीं मिला था वो उसको। वो पर कहाँ पे पर एक पढ़ता था? अच्छा सा वो कॉलेज का एग्जैक्ट नाम नहीं पता मुझे। पर अच्छा अच्छा कॉलेज में था वो। पर अच्छा। मतलब नॉर्मल एजुकेशन वो पढ़ा था, मतलब बंदा नॉलेजेबल था। हाँ। और अच्छा जॉब फॉब नहीं मिला था उसे, मतलब वो कॉलेज के टाइम से करता था वो, बहुत सारा स्टार्टअप में कनेक्टेड था। हम्म तो एक यूएस बेस्ड स्टार्टअप में वो कनेक्टेड था, वो अच्छा खासा कमा लेता था वहां से। एंड हम्म देन दैट स्टार्टअप जस्ट गॉट ब्रोक एंड ही हम्म वाज लेफ्ट बिहाइंड विथ नो मनी। हम्म तो वहीं से उसका वो ओयो रूम्स का आइडिया आया कि मैं, वो एक होटल में गया, होटल का वो रूम देखा, हम्म होटल का मालिक को बातचीत किया कि मैं आपका ऐसा ऑनलाइन में फोटो वोटो दूंगा, तो अगर कोई हम्म कस्टमर आया तो उससे मुझे कमीशन दे देना थोड़ा। हम्म तो वो होटल का मालिक एग्री किया इसमें। तो वो किया हम्म और वो मतलब एकदम से बूम, मतलब ओवरनाइट सक्सेस जिसे कहता है ना, मतलब वो कॉन्सेप्ट हाँ, एकदम नया नया था। हम्म डायरेक्ट ऑनलाइन से होटल बुक करना, ऑनलाइन में होटल का पिक्चर देख के आना, कस्टमर्स लाना, वो एकदम नया कॉन्सेप्ट था। और वो मतलब लोगों ने बहुत मतलब फास्ट एडेप्ट कर लिया उसको, नहीं टू बी पसंद ऑनेस्ट वो किया। सब वेबसाइट था ना, वो सब तो था, booking.com था, फिर ट्रिवागो वगैरह था। हाँ एग्जैक्टली पर वो मतलब वो होटल्स के साथ काम नहीं करता था। वो सिर्फ कंपेयर करता था प्राइस, कौन सा होटल अच्छा का अच्छा प्राइस अच्छा कितना हाँ। है। वो उतना यूजर फ्रेंडली भी नहीं था। उसको देन हम्म उसको पेमेंट करना पड़ता था उसको कि हम्म ये वाला सर्विस के लिए तुमको इतना चाहिए, ऐसा ऐसा। और हम्म वो एकदम फ्री भाई। वो जो हम्म आया वो कम से, वो हम्म अच्छा था। मतलब बंदा तू देख ना, 24 ईयर्स में बंदा बिलियनियर हो गया। कुछ हम्म तो है उसके अंदर, ऐसे ही तो एरा गैरा नहीं है ब्रो। ना। हाँ वो तो सही बात है। ये मुझे सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट है इन लोगों का, लोगन पॉल पे। भाई बहुत लोगन ज्यादा रेस्पेक्ट है यार। भाई लोगन पॉल मतलब का रिडेम्पशन है, देख देख दे आर बंदा हैप्पी ब्रो, दे आर हैप्पी। वो नहीं, वो भी नहीं, छोड़ तू। देख इंसान सबको ही मारता है, वो बंदा मारा, उसके बाद वो उठ के अभी जो उसके पास सक्सेस है, वो पहले वाला जो सक्सेस के बाद वो मारा था उससे भी ज्यादा है। वो एंड हो गया, वो फिर से आया। मतलब ऐसा होता है ना, वो इसके लिए ही हाँ बना हुआ है। अरे हाँ, मतलब उसने जो किया था वो तो बहुत ही खराब था, मतलब डेड बॉडी को कैमरा पे शो करना इज अ वेरी वेरी बैड थिंग यस टू यस। डू। मगर उसके बाद वैसा रिडेम्पशन, वो हाँ मतलब फाइट में और उसका पीआर टीम भी क्या है यार, हाँ भाई। कितना मैनिपुलेटिव। मैं किसी भी बात में कुछ भी सोचूं, उसका वीडियो देखने के बाद मैं उसके मतलब उसका पॉइंट ऑफ व्यू ही रखता हूँ हर भाई बात। क्या खतरनाक पीआर है। टॉकिंग अबाउट पीआरस, लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स। 20 सेकंड रिया चक्रवर्ती एपोलॉजी वीडियो, व्हाट आर योर थॉट्स? I just don't want to say anything because From the it was from the best PR team of the world to the worst PR team of the world, क्या था like वो? सत्य में that मुझे थे जय हिंद दोस्तों, एक बार के लिए तो मुझे लगा हिंदुस्तानी भाव आ गया। वाला तो मुझे मतलब समझ में नहीं, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। वो सत्यमेव जयते, मतलब क्यों बोल हाँ, रहे हो ऐसा? और मैंने वो भी मीम देखा,
वो वाला। भाई अरे बोल रहा ऐसा है, मतलब अरे एपोलॉजी वीडियो के लिए सफेद कपड़ा पहनना जरूरी है क्या? एग्जैक्टली। और भाई मतलब वो गरीब दिखना जरूरी है क्या एपोलॉजी हाँ। वीडियो के दीदी दीदी विदाउट सुशांत सिंह राजपूत इज लाइक बार्सिलोना विदाउट मेसी। लिए? यस। तो उसका वो अनएडिटेड वीडियो देखा जहाँ पे वो हाँ बोल हाँ, रहा था एकदम ब्रो, और क्या है, मेटाई है। लास्ट में वो बोला कि ये सब मतलब रिकॉर्ड मत करना, पर जो और आदमी फिर रिकॉर्ड वो भी किया था बोला वो अगर तू डालेगा तो मैं बोल देगा कि मैं नहीं था, और वही किया। हाँ, क्या है यार, क्या है यार। बॉलीवुड में सोनू सूद जैसे लोग भी है, और रिया ये तो जैसे लोग भी है। महेश रिया भट्ट चक्रवर्ती के जैसे। भी लोग हैं। अरे महेश भट्ट तो भाई हम लोगों का नेशनल शुगर डैडी। वो, उसको शुगर डैडी का हम लोग नाम दे सकते हैं अभी। नेशनल शुगर डैडी ऑफ इंडिया महेश भट्ट। Ruby, भाई really honest. सुशांत सिंह Mahesh Bhatt, if you are listening to this podcast, you are welcome to be on the show anytime you want. तो मिलेनियल्स के बारे में ही बात कर रहे थे, तो मतलब सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही अच्छा था यार, मतलब ट्रू इंसान जिसे कहते हैं ना। But वो पूरा मतलब हाँ, मिडिल क्लास का मसीहा था। मतलब he was made from zero, he just came from 0 to 1 like that। भाई 0 to 1, फिर 0 से स्टार्ट किया था उसने, इनफैक्ट माइनस से स्टार्ट किया था ना। वो तो डीयू में एग्जैक्ट। पढ़ता था इंजीनियरिंग, उसको डीयू का एवरेज सैलरी है 16-17 लाख। ठीक हाँ, है। वो वो जिस डिपार्टमेंट में था, वो थर्ड ईयर में और छोड़ दिया। ने वो नहीं किया, फिर बैकग्राउंड डांसर से उठ के फिर पवित्र रिश्ता तक गया, बेस्ट बना, उसको भी छोड़ दिया। मतलब 3 बार एकदम नीचे से शुरू होकर एकदम टॉप तक गया। हाँ, उस वो जिस टाइम पे पवित्र रिश्ता छोड़ा, उस टाइम पे वो बेस्ट था, मतलब हाँ वो मतलब पीक ऑफ हिज एक्टिंग करियर था वो वाला, मतलब पीक में टेलीविजन था। में। हाँ हाँ, और भाई बहुत अच्छा भाई कमाता भी था। हाँ, like I mean he was kind of a man of woods, you know, like who was never satisfied with whatever he had, he always wanted more। मोर, मतलब हाँ, he, और मोमेंट में he जीता था। हाँ exactly, he didn't restrict him there। Once he said in an interview, when he was asked that what you want to do in future or what you want, where you see yourself in after 5 years, तो वो बोला था कि he don't think about future much, and he said this thing, if you take care of today, tomorrow will take care of itself। and this phrase, ओ डीप, बहुत हार्ड, oh, बहुत हार्ड। this thing is really true, and I have seen it, like there was a time when I used to overthink, I just used to lost, I was just lost in my dream। I used to think कैसा मैं जी रहा हूँ, कैसा मेरा लाइफ होगा आज से 5 साल 10 साल बाद। so that didn't really make any sense। ब्रो so मैं बहुत ज्यादा ओवरथिंक करता हूँ यार, अभी भी बहुत ज्यादा ओवरथिंक करता हूँ, जिसके होता बारे है में भाई, सोचने की जरूरत नहीं भाई, उसको लेके मैं exactly पता bro। है मैं क्या करता हूँ, तुझे पता है मैं क्या करता हूँ? मैं एक चीज को उठाता हूँ, सोच अपने लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, अगर ये ऐसे नहीं होता या मैं ऐसा नहीं करता फिर वैसा करता, ये मैं सोचना चालू करता हूँ, ठीक है। हाँ अब हाँ मैं उसका पैरेलल एंडिंग्स बनाता हूँ कि अगर मैं अच्छा किया होता तो क्या होता, अगर मैं इससे भी बुरा किया होता तो क्या होता। ठीक है, ये सब करके अल्टीमेटली जब आंसर आता है दिमाग में, फिर चलो। जब छोटा था मैं, तब मैं ये लेके ओवरथिंक करता था कि स्कूल में टेररिस्ट अटैक हो गया, मैं वहां से मेरा ये तो मैं ब्रो, ये तो सब कोई, मतलब किसी को भी जाके ओवर थिंकिंग मंत्र ऑफ पूछ सबको। मैं 4 तले की बिल्डिंग से मैं जंप करूंगा, फिर नीचे जाके टेररिस्ट को ही बम मार के उड़ाऊंगा, फिर बचाऊंगा सब। हाँ भाई, ये सब कोई करता है ब्रो, ये सब कोई करता है। मैं अभी भी करता हूँ, और अच्छा भी लगता है, लेकिन जब एक टाइम के बाद पूरा जैम हो जाता है तब बहुत खराब लगता है। फिर हर बार आंसर एक ही आता है कि कुछ मतलब छोड़ दे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर आता है। होगा नहीं। हाँ, तू छोड़ दे, ये तुझसे ना हो पाएगा, वो वाला मिर्जापुर का। अब वैसा नहीं है, मैं बचपन से बहुत ज्यादा सोचता हूँ यार, मैं बचपन से बहुत ज्यादा सोचता हूँ, और ये मेरा दिमाग प्रॉब्लम। तू बोल हाँ, दिमाग है इसलिए सोचता हूँ, नहीं तो कबीर सिंह बनता फिरता, मगर सही है, चलो अच्छा है जो हो रहा है अभी। अभी जो क्या है ना, अभी देख 11th में आने के बाद थोड़ा बहुत सबका मतलब बिगड़ा था, ठीक है, हाँ हाँ मेंटली कुछ
फिजिकल हेल्थ बोल. हाँ मतलब एक मतलब अलग से एक्सपोजर मिलता है ना, मतलब लगता है कि नहीं हम क्लास 10 उतर के आए. अरे यार बिना बात का रेबेलियस बनता फिरता था, बिना बात का. ए तू क्यों बोला तू बस. Yeah, you got that. You got what I want, it's Sony, yeah. मिठी गल्ला करके तू ना जा गोरिये, गोरिये. Hey, I think about it every day. Baby looking like Hana Kazana on a plate. Hey, like mithai, like kulfi, rasmalai. Hey, pista barfi, sardiyan vich garmi lagdi. Jad vi tu mere raah vichon chaldi. Hey, baby let me see it. I just wanna eat it. Baby let me see it.